Good morning, class 10. Today I shall deal with this topic, why power sharing is desirable. So, before starting this topic, you should have complete knowledge of these two terms, prudential and moral. There are two reasons for power sharing, one is prudential and the second is moral. What is the meaning of prudential? Prudential means profitable or a situation of loss. So this is prudential. Now this is totally something like you can say economic in sense. When we talk about prudential reasons of power sharing, it involves about whether there is a kind of profit or whether there is a kind of loss in power sharing. When we are talking about moral, so now look, moral does not involve profit and loss. In sometimes in morality you might have to bear loss, but still you do it because just for the moral reason. When we talk about prudential ones, so prudential involves just profit or loss kind of situation. So power sharing has got two very strong reasons behind it. It is moral as well as it is prudential, as well as it is profitable. Power sharing is profitable also, and power sharing is moral also. So we are and now I am going to teach you line by line. These two different sets of reasons can be given in favor of power sharing. Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. What is meant by social groups? Social groups means caste, religion, people speaking different languages, people having different food habits, people having different cultures. These kind of groups are called social groups. Since social conflict often leads to violence and political instability, power sharing is good way to ensure the stability of political order. So what kind of power sharing we are talking about? Suppose in India there are Hindus, Muslims, Sikhs, Christians, Parsis, Buddhists. At the same time, there are the general castes also. There are the scheduled caste, scheduled tribe, the OBCs, the minorities also are there. So, if you look at the structure of government in our country, the people who are holding different positions of power, they come from different communities. As a result, we can say that power sharing, prudential, there is power sharing in prudential in India. For example, if you look at the president of India, the president of India is from the scheduled caste community. The vice president of India is from the OBC. Similarly, our Prime Minister Narendra Modi, he happens to be OBC. If you look at the number of secretaries in India, you will find that there is if you look at who is the Minister of State for Foreign Affairs, he happens to be a Sikh, Hardeep Singh Puri. If you find who is the Minority Affairs Minister, you will find Mukhtar Abbas Naqvi. What I mean to say is that you will find people belonging to different communities, different social groups in the structure of governance in India. You will find all kind of people, all sorts of people. So this is called power sharing. Even in the if you go at the number of professors in universities, you will find people from different. Even among students, you will find all the things are there. It is not unlike the case. It is not like the case in Sri Lanka. You saw Sri Lanka in all the government jobs, all the political parties. Only the Sinhalese were there. No Tamil was represented. So this is what I mean to say. If this thing could not be done in India, if all the government posts, if all the government posts, be it political executive post or bureaucratic post, if all these posts are given to one social group, then what will happen?
The same thing will happen as it happened in Sri Lanka. There will be a conflict. People will feel that there is nothing like power sharing. All the government post, university positions, they are going to a single community. So if we are talking about a single community, the advancement or empowerment of a single community, then that is going to lead you to where? That is going to lead you to social conflict. And when there will be social conflict, there will be violence, there will be political instability. When there is violence, there will be political instability. किसी देश में अगर दंगा हो जाए, आपको लगता है आप अगर कहीं पे दंगा फसाद होता है, आपको लगता है कि आप दुकान खोल के चला पाइएगा, बिजनेस हो पाएगा, कोई आपके देश में आके इन्वेस्टमेंट करेगा, पैसा लगाएगा, संभव है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि देश को सही से चलने के लिए, कोई भी देश हो और खासकर डेमोक्रेटिक देशों को, उनको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब है एब्सेंस ऑफ वायलेंस होना चाहिए। वायलेंस के लिए वहां पे कहीं कोई जगह नहीं है। तो पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run. मेजॉरिटी जिनकी संख्या ज़्यादा है, उनके अगर आप विल को, वो जिन चीज़ों को मानते हैं, अगर आप उनके ऊपर थोपना चाहते हैं जो इन चीज़ों को नहीं मानना चाहते हैं, तो ये तो सोचने में या देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसके जो परिणाम होंगे वो घातक होंगे। ठीक है। पड़ोस में पाकिस्तान है, मैं उसका नाम लेना चाहूँगा। Pakistan was made a democratic Islamic republic, but when General Ziaul Haq came to power, he turned the country into a majoritarian country. What happened in Pakistan? Now we know that Pakistan is begging for food everywhere in the world, from the IMF, from the Arab world, from everywhere they are begging for food, isn't it? So what I mean to say is that you should not try to impose, the government should not try to impose the whims and fancies of the majority over the minority community. It undermines the unity of the nation. Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings ruin to the minority as well. तो ये इस लाइन को आप बहुत, मैं इसको देशी भाषा में समझा देता हूं। अगर कोई व्यक्ति आपसे ज्यादा ताकतवर है और आप कमजोर हैं, वो आपको 10 घूंसे मारता है, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं मारिएगा, आप भी 1-2 घूंसा लगाइएगा। मतलब जो लॉस है वो म्यूचुअल है, उसको थोड़ा सा हुआ, आपको ज्यादा हुआ, लेकिन लॉस उसको भी हुआ है। तो कोई मेजॉरिटी है और मेजॉरिटी होने के नाते वो ये समझता है कि हम दूसरों के ऊपर जबरदस्ती कर लेंगे, तो ये उसकी गलतफहमी है। अगर ऐसा होगा तो न मेजॉरिटी के लोग चैन से रहेंगे, न माइनॉरिटी के लोग चैन से रहेंगे। लॉस इस साइड या उस साइड कम या ज्यादा हो सकता है। तो ये जरूरी है कि हमारे देश में शांति बनी रहे। अशांति हो तो फिर दिक्कत है। तो ये रहा प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल क्यों कहा गया, मैं इसको समझा देता हूं। अगर किसी देश में सोशल ग्रुप्स के बीच पावर शेयर नहीं होता है, किसी खास ग्रुप को एडवांस किया जाता है एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, तो ये फिर देश के लिए खतरनाक है। उस देश में इंस्टेबिलिटी होगा, इंस्टेबिलिटी के कारण वायलेंस होगा, वायलेंस के कारण वहां का जीडीपी, एनएनपी, जितना भी पी होता है सब गिरेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना कम हो जाएगा, और वो जो देश है वो एकदम पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगा, और वो जो देश है ग्रोथ रेट कम होगा, और वो पूरा, और जो देश है वो कटोरा लेके भीख मांगने के कगार पे चला आएगा। ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं हो। और ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं है, ये हम सभी लोगों के लिए भी है, क्योंकि
गवर्नमेंट जो लोग बनाते हैं वो हम ही के बीच से चुन के जाते हैं, तो ये हमारे ऊपर ध्यान देना होगा कि हमारी सोच कैसी है, उसको इम्प्रूव करना होगा। डेमोक्रेसी इज अबाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ ईच इंडिविजुअल सिटीजन, इट इज नॉट जस्ट अबाउट पॉलिटिशियंस। There is a second deeper reasoning why power sharing is good for democracy. दूसरा भी कारण है डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग, ये मोरल कारण हम लोग समझेंगे। मोरल को नफा घाटा से, नफा नुकसान से कुछ लेना देना नहीं, उसको बस जो है सो मोरल बस सही है तो सही है, हम इसको फॉलो करते हैं। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की आत्मा है, इसके बिना डेमोक्रेसी कैसा? जैसे फॉर एग्जांपल पावर शेयरिंग का कंसेप्ट आया डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी का कंसेप्ट क्या है? पहले राजा के पास 100% पावर, जनता के पास 0% पावर। बाद में ये इक्वेशन चेंज हुआ कि जनता के पास मैक्सिमम पावर, सरकार के पास कम पावर। जनता के पास 90% पावर, सरकार के पास 10% पावर। ज्यादा दिक्कत होगा, लोग सड़क पे आएंगे। तो पावर शेयरिंग मोरालिटी के वे पे आधारित है। डेमोक्रेसी का मतलब ही है पावर शेयरिंग। आप जनता को पावर, जो गवर्नमेंट है वो जनता को पावर देना चालू करती है, ठीक है। तो ये अगर आप अपने देश में, कोई देश कह रहा है कि हम डेमोक्रेसी हैं लेकिन वहां पे एक सेंट्रलाइज सिस्टम है और पावर शेयरिंग के नाम पे कुछ नहीं है, ना ही फेडरलिज्म है, तो नाम के लिए डेमोक्रेसी है, दैट इज जस्ट फॉर नेम, यू नो, फॉर अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। तो डेमोक्रेसी में जिनके पास पावर होता है, जो पावर को एक्सरसाइज करते हैं, उनसे कौन अफेक्ट होती है? सीधा सा आंसर है जनता अफेक्ट होती है। तो दोनों के बीच में पावर शेयरिंग होना चाहिए। एंड हु हैव टू लिव विथ इट्स अफेक्ट। तो जब सरकार पावर अपना यूज करती है तो उसके प्रभाव के साथ किसको जीना पड़ता है? उसके प्रभाव के साथ जनता को जीना पड़ता है। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। आप सरकार में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप राजा हैं, आपको जो मन में आएगा आप सो कीजिएगा। A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. Democratic government वो है जिसमें लोगों को जो है पावर जो है सिस्टम, जिसमें लोगों को जो है क्या करना चाहिए, जिसमें लोग जो है पार्टिसिपेशन ले। देखिए ये पॉलिटिक्स ऐसी चीज है कि इसको हम लोग नकारात्मक रूप में लेके चलते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना चाहिए, आइदर यू डू समथिंग विद पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स विल डू एनीथिंग विथ यू। तो इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल होता है जब लोग उसमें भाग लेते हैं। जैसे मैं आपको इसका सिंपल एग्जांपल दूंगा, अमेरिका में अगर कुछ भी सरकार वहां के लोगों के खिलाफ में करती है तो लोग तुरंत सड़क पे उतरते हैं। हमारे यहाँ पे टाइम नहीं है, ऑफिस जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है, ऐसा नहीं है। या ये प्रॉब्लम है, सबके साथ ये प्रॉब्लम है, हमारे साथ भी, आपके साथ भी है। तो डेमोक्रेसी में लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी इज मच रिक्वायर्ड। तो ये पहले वाले को जो हमने पढ़ा वो प्रूडेंशियल रीजन है, दूसरा है मोरल रीजन है। व्हाइल प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल bring out better outcomes, moral reason emphasize the very act of power sharing is valuable। तो वो कहते हैं आउटकम, रिजल्ट, पावर शेयरिंग का जो रिजल्ट है वो प्रॉफिटेबल रिजल्ट है। यू नो, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन इन द कंट्री। फॉर एनी सोशल ग्रुप पावर शेयरिंग इज विन विन सिचुएशन। अब पावर शेयरिंग नहीं कीजिएगा तो लूज लूज सिचुएशन, कोई ज्यादा लूज करे, कोई कम लूज करे, लेकिन लूज दोनों को होगा। तो ये मोरल रीजंस एम्फसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल। तो ये वैल्यूएबल है, एक वैल्यू है, मूल्य है पावर शेयरिंग करने का। अब जरा सा हम लोग पढ़ेंगे कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और अक्सर जो बच्चे हैं यहाँ से क्वेश्चन बनाना भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये देखा गया है पिछले कुछ सालों में, यहाँ से क्वेश्चन आता है, हाउ द नोशन ऑफ पावर शेयरिंग हैज चेंज्ड ओवर टाइम। पावर शेयरिंग का जो नोशन है कैसे समय के साथ चेंज हुआ है।
The idea of power sharing has emerged in opposition to the notions of undivided political power. For a long time, it was believed that all power of government must reside in one person or group of persons located at one place. तो पहले के समय में जब राजा महाराजा होते थे तो उस समय एक युग था, वो युग था खाओ और लड़ो। अभी ये जियो और जीने दो, वो युग था खाओ और लड़ो। तो इस युग की खराबी ये थी कि हमेशा एक राजा दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण करते रहता था, जिसके कारण दोनों जो भी राज्य थे वो हमेशा फाइट मोड में रहते थे, एवर रेडी टू फाइट, हमेशा लड़ने के लिए तैयार। तो इस प्रकार की स्थिति में क्या चाहिए था, इस प्रकार की स्थिति में डिसीजंस बहुत क्विक लेने पड़ते थे। ठीक है, अब कोई राजा आपको अटैक करने वाला है और अब आप डिसीजन लेने के लिए एक लंबा प्रोसीजर तो फॉलो नहीं करेंगे। तो उस समय में राजतंत्र एक हिसाब से सही था, लेकिन अभी के समय में वैसी स्थिति नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में सभी जगह लोगों को एहसास हुआ कि युद्ध अति राष्ट्रवाद ये किसी के लिए सही नहीं है, ये दुनिया को युद्ध की तरफ ले जाएगी। तो ये जरा हम लोग देखेंगे। बाद में पावर शेयरिंग के प्रति जो एटीट्यूड है गवर्नमेंट्स का और लोगों का, वो चेंज हुआ। लोग ये मानने लगे कि एक आदमी के हाथ में अगर पूरा का पूरा पावर दे दिया जाए तो वो इतना ज्यादा भ्रष्ट हो जाएगा कि उसका भ्रष्टाचार का जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है, वो जनता को भी जो जनता को भी भिखारी की स्थिति में लाके खड़े कर देगी। ठीक है, यहाँ पे फिर मैं कोट करना चाहूंगा जो लॉर्ड एक्टन ने कहा था, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर टेंड्स टू करप्ट एब्सोल्यूटली। जिसके पास जितना ज्यादा पावर होगा उसके भ्रष्ट होने का चांस उतना ही ज्यादा है। तो इसीलिए पावर शेयरिंग जरूरी है। पहले पावर शेयरिंग को जरूरी नहीं समझा जाता था, बाद में महसूस हुआ कि नहीं, पावर शेयरिंग होना चाहिए। It was felt that if the power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decision and to enforce them. पहले के समय में यह था कि अगर पावर शेयर कर दें तो तुरंत डिसीजन नहीं लिया जा पाएगा, लेकिन ये जो समझ है वो समय के साथ बदला है। One basic principle of democracy is that people are the source of all political power. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हमारे संविधान का जो पहला लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये लाइन उसी की एक्सप्लेनेशन है। क्या है वी द पीपल ऑफ इंडिया? वी द पीपल ऑफ इंडिया मीन्स हम भारत के लोग उस संविधान को लेते हैं और सरकार, वो साइन भले नेहरू ने किया, अम्बेडकर ने किया, पटेल ने किया, लेकिन उसको अंगीकार हमने किया है। और वी द पीपल ऑफ इंडिया इसलिए लिखा गया है क्योंकि आज जो भी लोग सांसद है, एमपी है और एमएलए हैं, वो ही वी द पीपल ऑफ इंडिया की देन है, वो दूसरे किसी की देन नहीं है, वो वी द पीपल ऑफ इंडिया की देन है। और पावर क्या होगा क्या नहीं होगा ये हम ही डिसाइड करते हैं। ये अलग बात है कि हम उनके मीडियम से डिसाइड करते हैं, लेकिन डिसाइड हम ही को करना है। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। एक डेमोक्रेसी में लोग जो है कैसे सेल्फ गवर्नमेंट से ये करते हैं। सेल्फ गवर्नमेंट मीन्स तो हम हमारे द्वारा खुद की चुनी हुई सरकार है। In a good democratic government, due respect is given to diverse group and views that exist in a society. डेमोक्रेसी जो है वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए। ठीक है, डेमोक्रेसी का ये मतलब नहीं कि एक खूंटे को पकड़ के लटके हुए हैं, पकड़े हुए हैं उसे जोर से। प्रगतिशील होता है डेमोक्रेसी, उसमें नए विचारों को एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर वो अच्छे हैं तो डाइवर्स व्यूज, अलग अलग विचारों के लिए सम्मान होना चाहिए। एवरीवन हैज अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज, और सभी किसी को इक्वल से मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो रिच और पावरफुल हैं उनके बात को ज्यादा वैल्यू दिया गया, जो उतना रिच और पावरफुल नहीं है उसको नहीं दिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। Therefore, it follows that in a democratic political power should be distributed among as many citizens as possible. तो जो डेमोक्रेटिक पावर शेयरिंग है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पावर को डाइवर्स किया जाए। इसका मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा। जो भारत का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पंचायती राज या लोकल गवर्नमेंट को कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया गया। वो जब 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ तो दिया गया। क्यों पहले नहीं दिया गया?
क्योंकि पहले नहीं लगा होगा कि हाँ पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, बाद में लगा कि नहीं पावर को लोकल लेवल तक ले जाना चाहिए, इसलिए फिर पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी का कंसेप्ट आया। The other forms of the four forms of power sharing, we'll read about it later. That's all for today. Thank you.